आदरणीय अध्यक्ष मंत्री कॉमरेड सुभाष लांगा, कॉमरेड श्री कुमार और मंच पे बैठे हुए नेतागण और पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए राज्य कर्मचारियों का और टीचर्स की प्रतिनिधि साथियों, डियर comrades, first of all, on behalf of the Center of Indian Trade Unions and All India Coordination Committee of Working Women, I extend revolutionary greetings to you all. So, CHU की तरफ से और कामकाजी महिला समन्वय समिति की ओर से मैं आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन देती हूँ। Comrades, I am thankful to the All India State Government Employees Federation for attending, inviting me to this, and it's a privilege for me. And I am proud to say that I was also a member of the All India State Government Employees Federation, and it's because long back, 30 years back, and for 11 months only, I was an employee in Kerala, and I was a member of the ASGF also. मैं भी 30 साल पहले राज्य कर्मचारी थी 11 महीने के लिए, और उसी टाइम में मैं ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की सदस्य भी थी। ये बोलने का मुझे गर्व महसूस करते हैं। And comrades, this is a very important conference and being held at a very important critical juncture, not only for the people of India but the entire movement world over. And it is, I think that we can say, it is not an exaggeration if we say, for the entire humanity, the conferences being held now are not a very, just recently we had the conference of the CHU, just be over. And this is also a very important conference. And in the decisions we are taking, either it is in the CHU conference or in the ASGF conference, for our further actions, it is not only, it is having an implication on the workers or the employees, but it will be having an implication on the entire country, entire people of the country, and whatever happening in India will be having an implication on what will be happening world over. हमारी ये जो अभी हाल ही में CHU की सम्मेलन हुआ था, और अभी ये जो हमारी राज्य कर्मचारी महासंघ का सम्मेलन हो रहा है, जो भी हम लोग यहाँ पे जो फैसले करते हैं, आने वाले दिनों में हमारी आंदोलन की क्या रूपरेखा होगा, वो सिर्फ ना सिर्फ हमारी एम्प्लॉइज के लिए और भारत के जो हमारी मेंबर है या हमारी क्लास के लोग हैं उसके ऊपर में नहीं, पूरे देश की और पूरे देश की जनता की आगे जिंदगी कैसा होना है इसको निर्णय कर लेंगे। और वो भी कोई बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं है। जो भारत में भारत की जो सरकार की नीति के खिलाफ में जो आंदोलन होगा उसके खिलाफ में जो हम लोग जो अपना जो रेजिस्टेंस दिखाएगा वो सिर्फ ना सिर्फ उसका भारत के जो लोगों पे नहीं पूरे दुनिया पे इसका असर होगा। तो हम लोग उसी गंभीरता के साथ में हमारी हर चीज को, हमारे डेलिबरेशन को और आने वाले जो हमारे फैसले को और उसको किस तरीके से हम उसका योजना बना के लागू करेंगे उस गंभीरता से लेना है। अदरवाइज कॉमरेड्स, द नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट अब्सॉर्ब अस। जो आने वाला पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। जो हम भाषण के लिए जो बोलने वाली बात नहीं है, हम इतिहास जी रहे हैं और हम इतिहास बनाने वाले वर्ग में से है, तो हमें उसका गर्व भी बनाने, उसकी जिम्मेदारी का एहसास भी होना। साथियों, मुझे ये बताया है कि मैं लेबर कोड पे भी बोलूं। आज की राजनीति के बारे में कोई भी बोलेंगे वो लेबर कोड के बारे में ना बोल के कहीं बोल नहीं सकते हैं कि and if anybody wants to talk anything about the democracy, whether it is in India or world over, they have to speak about the right of the labor and they have to speak about the labor codes which is being imposed on the working class of India and on the people of India. So that is why it is very important for us to learn not about what the clauses and what changes are being.
why it is being implemented on us at this juncture. To understand that is very important always. जो हमारी जो लेबर कोड के बारे में जो है वो क्या हो रहा है, माने उसको एक एक क्लोज में क्या है उसके बारे में ही नहीं, ये क्यों डाला जा रहा है और उसका क्या हमारी जो जनता के ऊपर क्या उसका इम्प्लीकेशन है, उसके पीछे की क्या राजनीति है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. And in my deliberation, I am not going to say what will be the clause by clause and all. And there are many publications by CITU and in many trade unions and even ASGF about that. And I have brought a few copies of these labor codes. This is about the claim and implication and what is the main features. And it will be available as soft copy also. It is available. Some hard copies in English and in future it will be available in Hindi also. जो एक हिंदी में भी इसके बारे में जो हमने जो पब्लिकेशन किया है, जो मेन पॉइंट क्या है, उसका जो क्लोज में क्या चेंजेस लाया है उसमें है. लेकिन मैं उसके ऊपर में नहीं बोलना नहीं चाहती हूँ. लेकिन ये क्या है, क्या चल रहा है, why it is being, and you know that in the last session of the parliament it was like a kind of a rain of all the anti-people laws. कि जो पिछले जो सेटल हुआ था पार्लियामेंट का, उसके ऊपर आपने देखा है उसमें क्या है, जो जन विरोधी नीतियों का बारिश, या क्या बोलते हैं, साथी बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द पीपल और जेनोसाइडल अटैक, these are the words we use. हम लोग बोलते हैं कि जनता के ऊपर नरसंहार जैसा ये जो कानून की तरफ से लेके आया. और ये क्यों है, और ये भी नहीं कॉमरेड्स, अभी आपका उद्घाटन भाषण में आपका जो इंटरनेशनल टीयूए का जनरल सेक्रेटरी भी आए थे, उन्होंने भी जो बोला होगा आपके ऊपर कि क्या परिस्थिति है, क्या दुनिया में चल रहा है, और बोलते कि जनवाद का, और जनवाद के बारे में बोलने वाले जो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उसके घर से उसकी बीवी के साथ में उठा के दूसरे देश में लेके गया और वहां पे उनकी कानून के दायरे में लाके तो बिना कोई सबूत का उसके ऊपर कार्रवाई चल रहे हैं और बोलते कि हम जनवाद बचा रहे हैं. और ये है, और हम भी ये समझ लेना हमें घर के अंदर पहुंच गया है, जो साम्राज्यवाद का हम नारा लगाते हैं ना जिसके खिलाफ, जो इंपीरियलिज्म which we are taking the slogan against imperialism, it has reached inside our houses. हमारे घर के अंदर पहुंच गए हैं. कभी भी किसी के साथ में दूसरे देश में कानून का तो कोई हम बात करते हैं, कानून मांग रहे हैं, लेकिन कानून कोई सारा कानून को धज्जियां उठा रहे हैं. तो ये क्यों, सबसे पहले है क्यों, क्योंकि ये एक संकट में है. कौन संकट में है, हम नहीं संकट में है, ये पूरे दुनिया के अंदर में ये पूंजीवादी व्यवस्था, the neoliberal capitalism is in a crisis, in a systemic crisis. जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो नवोदारवादी व्यवस्था, वो एक संकट में है, गहरी संकट में है. और वो जो पूरा दुनिया का विकल्प जैसा बोलते हैं, जो ये पूंजीवाद, वो अपना सारा कुछ जो जनता का समस्या को सोल्व करने का उसके पास में कोई विकल्प नहीं है. वो खुद भी बोलते हैं कि अमेरिका जो उसका जो केंद्र है, the citadel of capitalism, the citadel of imperialism, the US itself has shaken, and they don't have any alternative to solve its own crisis and the issues of the people. So they are into such a mode that they say that it is like Comrade Prabhat Patnaik used, that it is a kind of a rogue that what we call it in means in Hindi also we can say तो गुंडागर्दी पे सीधा ओपन उतार गया है कि ये imperialism. तो in this situation that we have to understand, and they will go to any extent, and it's a long drawn. इतने साल से हम बोल रहे हैं कि ये जो है नव उदारवादी का संकट है और वो उसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारे इंसानियत को खत्म करते. Any kind of humanity that they are doing away with, any kind of democracy
that cannot solve the problem. Their system cannot work in a democracy. So they are into total kind of authoritarianism, doing away with all kinds of humanitarian concern, any kind of international and national laws, and directly entering into war. That is what is reflected in what Trump is saying. जो ट्रम्प जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि ये ग्रीनलैंड भी हमारा है, ये भी हमारा है, जो भगवान को गलती हो गया उसने पूरा तेल जो है कुछ राज्यों में डाला, इसलिए वेनेजुएला भी हमारा, उसको हम ले लेंगे, कौन पूछने वाला है। और भारत में वो कानून कौन है, वो अपना कानून बनाने वाला, हम बोलेंगे कि क्या कानून बनाना है। तुम्हारे तेल का तुम किससे तेल लोगे, हम तय करेंगे। तुम अपना दूध का क्या दाम देंगे, वो हम तय करेंगे। तुम्हारा किसानों का उपज का क्या प्राइस है, वो भी हम तय करेंगे। हमारे अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे बच्चों को भी हथकड़ी पहना के तुम्हारे देश में भेजोगे, तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगे। ये जो एक रोग काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट मोड, तो इट इज बिकॉज इट शोज नॉट आवर क्राइसिस, इट शोज देयर क्राइसिस। उनका लाचारी है, वो कुछ भी करने को तैयार करके उतर गया है, यही हमें समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल। And also, comrades, we are talking about this autocracy, fascism, neo-fascism, and the kind of communalism, whatever is going on in our country also. हमारे देश में भी जो चल रहा है, इसको समझना, इसको जड़ कहाँ है, तो हमें जड़ पे वार करना है। तो what is the root of all these things? So we have to understand whenever the capitalism is in a crisis, the authoritarianism, fascism, that comes as a political remedy. उसका एक राजनीतिक जो है सॉल्यूशन के तौर पे ये फासिज्म लेके आते हैं। तो पहले भी जो फासीवाद जैसा आया था, तो वो भी एक जो है ऐसा एक पूंजीवादी संकट के दौर पे आया था, और उधर में भी हमें देखना है कि उसके विकल्प में क्या क्या आया है और कौन उसके लिए उसके खिलाफ खड़े हो गया। तो एक सिमिलर सिचुएशन इज इमर्जिंग वर्ल्ड ओवर एंड इन इंडिया। हमारे देश में भी और हमारे पूरे दुनिया में भी ऐसा एक जगह है, उसके खिलाफ का आंदोलन भी है। ये हमारे लिए सबसे, और वही हमें देखना है। द क्राइसिस, a crisis of capitalism means there is no profit. The corporates, the inequality is widening, but they are unable to retain their profit. So they are going to any extent to make profit, whether through war or through invasion, whether the genocidal war, all those things I am not going to into detail about that. From the war in the genocide in Palestine, who is benefited, including our Adani, whether it is the arms trade or the drones or any kinds of trade, they are making profits. It is not about any physical land or anything. It is about the profit. The invasions, the wars, the conflicts, the regional conflicts, everything is about making profit. जो देश का जो सीमाएं हैं, वो जमीन हमारा है, ये युद्ध नहीं है। युद्ध किसी जगह को अपने कब्जा में लेने के लिए नहीं है। युद्ध किया जा रहा है मुनाफा को बढ़ाने के लिए। जैसे जो पैलेस्टीन में नरसंहार भी जो हुआ है, वो भी अपना मुनाफा को बढ़ाने के लिए, जो अदानी ने पोर्ट से भी कमाया, ड्रोन से भी कमाया, ऑयल से भी कमाया, अंबानी भी कमाया, टेलीकॉम से भी कमाया। तो ये युद्ध भी है, और जो कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है बॉर्डरों में, हमारे बॉर्डरों में भी जो हो रहा है, वो प्रॉफिट के लिए है, मुनाफा के लिए है, उसको हमें समझना है। और वो क्राइसिस, और जो एक ट्रम्प के थ्रू जो आते हैं कि वो ट्रेड के लिए बोलते हैं कि इसको तुम्हारा टैरिफ बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया। हमारी सरकार कुछ नहीं बोला, वो क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज और स्पेशली यूएस, वो अपना क्राइसिस को दूसरे कंट्री के ऊपर डालना चाहते हैं। They want to outsource their crisis to other countries. इसलिए तुम्हारा देश को ऊपर में जो टैरिफ डाला, और what should be our response? हमारे देश का response होना चाहिए 50% बढ़ा दिया, 2% बढ़ा रहे हैं। अभी भी जो यूरोपियन कंट्री से भी ट्रेड का हो रहा है, बोलते हैं कि तुम्हारे इधर फ्री में दूध भी इंपोर्ट करो, जो सारा हमारा किसानी प्रोडक्ट्स भी करो, सर्विसेज भी करो,
Our they want our economies to liberalize, open to the market, and they want to restrict the move of the labor. हमारे लोग वहां जाके काम करने पे पाबंद, जो पूंजी का पूरा खुला छूट दे दो और मजदूर को और मजदूरी को पाबंदी लगा दो, ये है उनका जो पूरा पॉलिसी। उसी के अंदर then what they are doing, there is this tariff import. So what should our government do? Our government should be protecting the rights of our people, our economy, our sovereignty. हमारे देश का संप्रभुता, हमारे देश के लोगों का जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकारें होना है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि वो हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट, हम बोलते हैं, हम लोग अपनी जो ट्रेड यूनियन की टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं कि राज सत्ता। It is the not the government but it is the ruling classes, जो सत्ताधारी वर्ग है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो गवर्नमेंट और जनता नहीं, वो सत्ताधारी वर्ग है and they are protecting the interest of their class. वो अपना क्लास इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो और they are not protecting the interest of the people, they are protecting the interest of a handful of corporates. So that is what is happening. So whether this the tariff has come, so what will happen to our industry? Our industry also will be affecting. हमारे इंडस्ट्री के ऊपर भी अफेक्ट होगा, तो हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट हो जाएगा तो उसका इसका मुनाफे को भी अफेक्ट करेगा। हमारी अदानी का भी, यहाँ जो भी दूसरे भी है, तो कई नाम आता है, लेकिन टाटा भी है, बिरला भी है, सब लोग है चुपचाप उसके साथ में, वो भी काफी मुनाफा कमा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी उसके मुनाफे पे असर हो रहा है। ये जो तारीफ आएगा तो ट्रेड में जो एफटीए भी जो हो रहा है, तो हमारी सरकार क्या कर रहे हैं? उसको जो अफेक्ट होता है उसको जनता के ऊपर डाल, जो क्राइसिस का बर्डन ऑफ द क्राइसिस, द कैपिटलिस्ट कंट्रीज स्पेशली द यूएस इंपीरियलिज्म इज outsourcing it to the other countries, especially third world countries like India, and the Indian government is putting that burden on the people of India, and especially the working people of India and the working class and the peasantry. जो यही चल रहा है, जो वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं, and this labor code is for that. labor code जो बनाया है वो उसके लिए वो burden को हमारे ऊपर डालने का है। तो they want to cut the cost of production, मुनाफा ज्यादा करना है तो cost प्रोडक्शन का cost कम करना है, क्योंकि बेचने का तो मार्केट को वो पाबंदी लगा रहे हैं और वो प्रोडक्शन का बाकी चीजों में भी वो पाबंदी लगा रहे हैं। तो वो कटिंग कॉस्ट का मतलब है कि मजदूरों को जितना शोषण किया है और भी शोषण करो। They want to take us to such a state, what the comrade was telling, 10%, top 10% means 25 to 32,000. 25,000 rupees means minimum wage. According to our demand, it is 26,000 rupees. So those who are getting minimum wage is in top 10%, and 90% are not getting. The government's own records say that you are not in top 10% means you are in 90%. So 90% of the people are in less than minimum wages. They are again imposing this labor code. Why? They are not getting anywhere. And where the labor laws are covered, only 4 to 5%, 95%, 93% are not covered under any labor laws. जो लेबर लॉ है वो कितने के ऊपर में लागू है? आपका न्यूनतम वेतन 26,000 का मांग है, वो 26,000 जिसको मिलता है वो टॉप 10% में आएगा। इसका मतलब क्या है? 90% को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसके में भी जो लेबर कानून जिसके दायरे में आता है, जिसके ऊपर लागू है, वो आपका जो ये कानून के अंदर आते ही नहीं है, तो भी इतना बेचैनी क्यों है ये लेबर कोड को लेके आने का? और वो लेबर कोड में क्या प्रोसेस किया है? दैट इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड, दैट दे वांट टू फर्दर reduce any kind of labor cost or whatever the
working class or the working people of India are getting, उसको और निचोड़ो, जहां पे हमें लेके आया है अभी ऑलरेडी, उसको और भी ज्यादा खराब करो. वो that is what we call genocidal attack. It is annihilating the people. People are dying out of hunger. जो लोग भूखे मर रहे हैं और उसको और ज्यादा भूखे करने का ये अटैक है. तो उसमें क्या है? I am telling you about the processes what they are doing, how they are doing it. First is that no more permanent employment. कि जो भी है सारा ऑलरेडी तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इतना खत्म हो गया और उसको आउटसोर्स कर रहे हैं. आउटसोर्समेंट भी हो गया, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है, अभी सब कॉन्ट्रैक्टर और आउटसोर्स ज्यादा है. और उसके ऊपर ट्रेनी लेके आया है गवर्नमेंट. और जो मोदी जी का क्या है, वो हर बार अब आप एफएमबी खोलोगे तो आता है कि आपको नौकरी मिलेगा. जो बच्चे 1 साल भी पढ़ोगे तो उसको आपको 5 दिन के लिए भी नौकरी मिलेगा. That means it is creating an atmosphere to have a short-term employment, and now through this labor codes they are legalizing this uncertainty in employment, legalizing the non-permanent type of employment. That is what is they are legalizing fixed-term employment. तो ये हो गया आपका फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट हो गया ना. प्रमोशन के लिए लड़ाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सीनियोरिटी की लड़ाई कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा. आपका फिक्स टाइम है, 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए नौकरी है, तो वो लड़ाई का जरूरत भी नहीं पड़ेगा. ऑलरेडी व्हाट यू आर टेलिंग इज दैट 30 लाख इन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मिनिमम 30 लाख वैकेंसी, तो वो तो ऑलरेडी हो गया. तो और किसके लिए क्या लड़ाई है? एंड ऑल्सो द सोशल जस्टिस. वेयर इज द रिजर्वेशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन? नो मोर. फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट में कौन सा है? जो जहां मिलते प्राइवेट में तो वैसे है नहीं. तो दैट मींस दैट मार्जिनलाइज्ड पीपल विल बी फर्दर मार्जिनलाइज्ड and there won't be any kind of hope for even the social justice, whether in education or in employment. तो वो खत्म, आपका permanent employment खत्म. Then the wages. So the entire standard of wages has been dismantled. तो ये जो आपका जो वेज है, तनख्वाह जो है, उसका डेफिनेशन ही खत्म कर लो और उसको जो है और भी ज्यादा कम में लेके आ जाओ. That is what is done through the labor codes. तो उसका provision and all are here. By definition, they are declaring that everybody will get minimum wages. Everybody will get an appointment letter. Everybody will be covered under from tomorrow. That is what the announcement and advertisement is coming. But by definition, in the law, they are removing all those. That also that 7% who were covered, they will be removed now further from the coverage by definition. And is that the definition of the worker or the employee? They are using it interchangeably. So you will be in one code you are a worker and in the other code you are not a worker. That kind of a situation is there with many employees, like our medical representative. That is there. And then if you are in a supervisory position and you are getting 15,000 rupees as wage, you are not a worker. So who will be covered? So आपका 25,000 भी नहीं है कि उससे भी कम, तो वो होगा. अब तो फिर कौन है? और वो भी कम है, इसीलिए वो लेके आया फ्लोर लेवल मिनिमम वेज. दैट फ्लोर लेवल मिनिमम वेज इज 178 रुपीस. 178 रुपीस माने 5,000 रुपया महीना मिलेगा. तो आपका 25,000 भी नहीं है, वो आ जाएगा. अभी आपका फिर जो 90% जो है वो 95% या 99% भी लेके आएंगे, तो वो फ्लोर लेवल मिनिमम वेज के लेके आया. तो दैट मींस whatever wages already in many states which we are getting, that will be further reduced because nobody will be going. So your law says that minimum wages can be 178 rupees. So why should we give more? And that will be the one thing about the wages. Then the working hours. I said, comrades, that 30 lakh vacancies are there. In different states it is different.
some are outsourced, some are still vacant. So who is doing those work? जो आपका पास में अगर राज्य कर्मचारी में 30 लाख वैकेंसी है, अगर उसमें तो कुछ तो आउटसोर्स वगैरह में भरा होगा, लेकिन बाकी अभी भी खाली है, तो ये 30 लाख का काम कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? कोई अंदाजा है कि हम लोड कितना बड़ा है, काम का खंडा कितना बड़ा है? हमारे बैंक में वो 17 घंटे तक लोग बैठ के काम कर रहे हैं। कोविड के सिचुएशन में इसलिए डेली होता है। डेली आप लोग खुद भी आप लोग 5 बजे नहीं जा पाते हैं, कोई भी नहीं जा पा रहे हैं अपना ऑफिस छोड़ के। काम पेंडिंग है तो करना है, कुछ काम तो यही है। और हम लोग वो डेली का रूटीन में अंदाजा भी नहीं लगाते, कैलकुलेट भी नहीं करते हैं। एंड नाउ इट विल बी लीगलाइज्ड इन द कोर्ट्स. Courts will be legalizing the stretched working hours, and through that the 12-hour work will be legalized. 8 घंटे का काम, जस्ट नाउ अपने साथी बोल रहे कि 8 घंटे का विनोद और 8 घंटे का विश्राम, मनोरंजन कहाँ है? तो वो 8 घंटा will not be any more any low. This is an inhuman thing. Human has to be given 8-hour rest and 8-hour recreation. Now you will not be any more human, you will be slaves. So that is, the slavery is legalized through increase in working hours. And also then the comrades, the wage, the working hours, and then social security. Social security, pension, everybody will get social security. That is the announcement. Who will get? Now even about the wages, whatever minimum available, by definition, by one stroke, they are removing 90% of the workers who were already covered. That also is 10%. You miss less than 10%, around 7%. So from that, by one definition, in the factory, in a worker, that if you are working in a factory which is having 10 people under with power, that was the definition of a factory worker. Now you made it into 20. तो 20 लोग जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पहले तो 10 लोग जो फैक्ट्री में काम करते थे, वो लोग फैक्ट्री ये वर्कर का डेफिनेशन में आते थे। अभी उसको 20 कर दिया। तो देखने में क्या है, 20 लोगों का फैक्ट्री में कर दिया, लेकिन वही एक कानून से जो है 70% of the factories and 90% of the workforce is out of the coverage of the labor. By one definition, single definition, 70% of the factories and 90% of the workforce will be out of the coverage of the labor. So by definition, तो और घोषणा क्या है? सबके ऊपर में लागू है, मैंने सबको मिनिमम वेज मिलेगा, लेकिन आप डेफिनेशन से सबको रिमूव कर दिया। और भाषण में तो है, एंड सोशल सिक्योरिटी आल्सो द सेम, सबको पेंशन मिलना चाहिए। क्या पेंशन मिलना चाहिए, कहाँ पैसा है? You know about the social security pension for the people, and what happened to our own pension? Where is our main struggle is now about the pension itself, one of the main areas. So now entire pension and the PF also, EPF, ESI, all those coverages are being removed. And if a worker is getting 15,000 rupees, now he will not be covered under EPF. And if one is getting 20,000, more than 20,000, he will not be covered under ESI. जो है, तो then now you can understand कि who all will be covered under this law. So by this definition itself, and if that is low, and this is the thing, and the safety security also found it, you know that how many accidents are happening in the industrial site, industrial factories, that some burner blast and people are dying, 30, 40 like that, hundreds of things are not even reported. So they're not the, and then if the factory owner is supposed to provide you some security, जो अगर मालिक अगर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसको प्रोसिक्यूट करने का प्रोविजन था, वो प्रोसिक्यूट करने का प्रोविजन को हटा दिया और उसको क्या भाषण दिया, वो बजट का भाषण आप अगर याद करोगे तो बोलते कि डीक्रिमिनलाइजिंग द लॉज, जो माने कि जो क्रिमिनल था
जो मजदूर को सुरक्षा ना देके उसका मारने का किया है अपना प्रॉफिट के लिए, उसको डिक्रिमिनलाइज करेगा कि दिस इज व्हाट बीइंग डन। तो वो है कि कितना 1 लाख रुपया 50,000 रुपया देके तुम छुटकारा पा सकते हैं। अर्लियर इवन द वर्कर्स शेयर ऑफ द पीएफ if it was not remitted, there was provision to prosecute the owner। जो पीएफ का पैसा भी जमा नहीं किया तो आपको प्रोसिक्यूट करने का प्रोविजन था, वो तो सारा हटा दिया। अभी तो 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, खत्म, वो नहीं दे सकते हैं। And this is the other thing about the social security and safety. And what is the announcement? Gig workers will also be given gratuity. That is the gratuity for a 6 month or somebody is working for 6 months. कौन देगा? Who will be providing? And where will the money come? No provision. बोलने में क्या है, सबको मिल जाएगा, मैंने बोल दिया ना। और कोई प्रोविजन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कौन देगा, कहाँ रिक्रूटमेंट के लिए आपका? सबको आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अभी आपको स्कूल में काम करने वाले होगा, स्कूल का जो कुक है, मिड डे मील वर्कर है, उसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी देता है क्या? वो सरकार खुद उसका एम्प्लॉयर है, फिर वो है, वो 1 करोड़ है स्कीम वर्कर, तो कोई लेबर कानून के दायरे के अंदर नहीं है। फिर बोलते हैं, बोलने में क्या है, सबको इसके अंदर में कवर्ड, एवरीबॉडी विल गेट अंडर कवर। एंड about the women workers also complete, what they have done is that the protection has been removed and for the against discrimination act also has been removed. The Equal Remuneration Act, it was covering not only the wages but also the appointment, promotion, all kinds of discrimination. It was giving the protection for women workers. Now that has been removed, only the wages are covered, and appointment also through struggle it has been also incorporated, but for promotion and transfer, all those things, nothing. And also there was ban on night work for women. Now that has been given blanket permission. Earlier there was provision, earlier also women were working, the nurses will be working, telecom sector they were working, in IT sector there will be exemption, provided that the security will be arranged and it will be ensured first. पहले उनका जो है रात की पाली में काम करने के लिए जो पहले जैसा था कि उसको जो उस दायरे के अंदर में आते थे तो पहले भी काम करने को अनुमति देते थे, जैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वगैरह में जो कोई ऑर्डर आ जाता है तो रात को काम करवा सकते थे, लेकिन पहले जाके परमिशन लें, और परमिशन लेने के लिए आपको कंडीशन दिखाना है, क्या है, आप उनको ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, वहाँ पूरे सुरक्षा है, सीसीटीवी कैमरा है, लाइटिंग है, ये सारा दिखाना पड़ता था। तो अभी वो नहीं है, सबको कर लो, और मजदूर से लिखवाना है, ये लिखा है, वो नहीं लिखवाएंगे, कौन लिख के नहीं देगा, नहीं है तो पैसे काम नहीं है। और लेबर इंस्पेक्शन, you know you are in labor department also, no more inspection, no more inspector, it is called facilitator। अभी आप जाके एडवाइस दे सकते हैं कि आप ये कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आप थोड़ा अच्छा सा काम करो, ये एडवाइस दे सकते हैं। नो मोर पावर विद द लेबर डिपार्टमेंट टू टेक एनी प्यूनिटिव एक्शन। So without that, what will happen? Already the harassment at workplace, you also know, even in the government sector, what is happening. Even in the daytime, women are not safe. So that is one aspect. The other aspect is about the double burden. The women will work throughout 24 hours and at home also they cannot take any rest. They have to work at home. घर का काम भी उनको ही करना है। तो ये जो सामाजिक स्थिति को भी देख के जो प्रोटेक्शन है उसको पूरा खत्म किया, बोला हमने तो आजादी दे दिया महिलाओं को रात को काम करने के लिए, और क्या है, अंडरग्राउंड में भी काम करने का। अंडरग्राउंड वर्क नॉट ओनली हार्मफुल फॉर वुमेन, नॉट ओनली अंडरग्राउंड वर्क, खदान के अंदर काम कर सकते हैं, उसको अनुमति दे दिया, पहले रेस्ट्रिक्शन था महिलाओं का। एंड हजार्डस इंडस्ट्रीज, केमिकल्स एंड ऑल, there were restriction for women. It is not only that it was harmful, it will be harming the next generation itself. It is not only when you are pregnant you will be given protection, but it will be that before that also, if you are consuming all the poison, that then that will be affecting your health. जो आपका
हेल्थ को ही नहीं, जो आने वाला पीढ़ी को भी अवेयर करने वाला सारा प्रोटेक्शन खत्म कर दिया। बोले हमने इनको इक्वालिटी दे दिया, वो जाके मैदान में लड़ो और मरो, ये दिया है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द वुमेन वर्कर्स एंड ऑल द प्रोटेक्शन आल्सो कॉल इट। तो द थिंग इज दैट, एंड आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। हमारे यूनियन बनाने का और हमारे जो सामूहिक सौदेबाजी का जो अधिकार है, उसी के ऊपर में जो हमला है। एंड व्हेन दे आर डीक्रिमिनलाइजिंग द एम्प्लॉयर क्लासेस, they are criminalizing the union activity। जो आप उनको डिक्रिमिनलाइज करो और जो भी है यूनियन बना ही नहीं सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना ही नामुमकिन कर दिया, क्योंकि आपका उनका पूरा कुंडली देना पड़ेगा लेबर डिपार्टमेंट को, और मालिक से भी वो पूछताछ कर सकते हैं। यूनियन बनाने का कोई सोचेगा तो दूसरे दिन उसका नौकरी नहीं है, तो कैसा बनाओगे? तो वो ये है एक। और दूसरा, यूनियन का रजिस्ट्रेशन रखने के लिए भी किसी से भी आप मेरा मेंबरशिप का आप रजिस्टर मेंटेन करोगे, और किसी से भी आप कहलवा दोगे कि ये मैं मेंबर नहीं हूँ और आपके रजिस्टर में उसका नाम है, तो आपका रजिस्ट्रेशन उसी से भी खत्म कर सकते हैं। किसी को भी धमकी देके बोल सकते हैं, बुलवा सकते हैं, ये खत्म। और जो है आप हड़ताल तो कानूनन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें there will not be any legal strike. Now we are issuing the notice. Why we are issuing the notice? Because 15 days notice period and all. One is that they increase the notice period, but the labor code says that the day you are serving a demand charter to the employer, that day itself you have to understand that the means you have the provision says that the conciliation started. So you serve the strike notice, then the conciliation has to be understood that is started. आप जो जिसको हड़ताल का नोटिस देके ही हड़ताल करते हैं, बिना नोटिस का हड़ताल करोगे तो वो इलीगल हो जाएगा। तो जिस दिन आप नोटिस दोगे उसी दिन से कंसिलिएशन स्टार्ट किया है ये मानना पड़ेगा। वो अगर आपसे चर्चा के लिए बुलाएगा, वो लेबर ऑफिस में आएगा, नहीं आएगा तो भी आपको मानना पड़ेगा कंसिलिएशन स्टार्ट हुआ। कंसिलिएशन के दौरान हड़ताल करना इलीगल हो जाएगा। ड्यूरिंग कंसिलिएशन एनी स्ट्राइक इज इलीगल। तो विद नोटिस यू कैन नॉट हैव एनी स्ट्राइक, विदाउट नोटिस आल्सो इट इज इलीगल, विद नोटिस आल्सो इलीगल। So this is what these great labor courts are doing, and not only that, they have amended the criminal laws. BNS, the Bharatiya Nyaya Sanhita, says any kind of collective action will amount to the anti-national activities. Anywhere they can declare that this is an essential service, and anywhere you can say any collective action without any this kind of the strike is all illegal. So that means that if you are going into strike, that will come under BNS. So then you can be penalized without even giving a bail. And also, and if you support the strike, if you go and give a भाषण, आप लोग आजकल तो एक वीडियो में भी आप सपोर्ट करने के लिए देंगे तो आपको डबल पनिशमेंट होगा। जो हड़ताल करने वाले से ज्यादा पनिशमेंट आपको होगा। And in UP, the comrades know there was a strike in the glass industry, and the CITU district president was arrested and put in jail under the BNS Amendment for 3 months without bail. He was not even there. तो जो साथी वहां था भी नहीं, उनको 3 महीना बिना बेल का जेल के अंदर बंद किया। This is what is happening. So why this is happening, you understood? What is happening, understood? And this will be having a cascading effect everywhere. It is not that we are not covered under the labor code. The government employees are not covered. But if the minimum wages is becoming too low and there won't be any permanent employment anywhere, what will happen to the bargaining? And there won't be any social security pension. And there won't be any struggle for that. So what will happen to the bargaining power of our government employees? Nowhere.
and it will be affecting even the democracy of our country. Any kind of collective action will be illegal. जो सामूहिक सौदेबाजी का और जो यूनियन बनाने के अधिकार भी नहीं रहेगा तो जनवाद नहीं बचेगा। जो पूरे दुनिया के अंदर में जनवाद कायम हुआ है, मई दिवस कायम हुआ है, 8 घंटे का काम, यूनियन बनाने के अधिकार, न्यूनतम वेतन, ये चीजों के आधार पर ही डेमोक्रेसी बना है। वो मुद्दों के ऊपर में, जन आंदोलन के ऊपर में जो पुराना इतिहास देखोगे, हमारे देश का भी जो स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास देखोगे, तो ये सारा साथ में उस आंदोलन के साथ में it was anti-imperialist struggle, the struggle for the rights of the people and for the political freedom, and this struggle, that was the legacy. 1926 we had the Trade Union Act. तो वो खत्म होगा तो जब political right and democratic rights, nothing will be there. Our democracy will no more be democracy. Our more important for our state government employees only. And along with that, further cutting down the wages, that is why they have done away with the मनरेगा. जो और ज्यादा जो wages है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जो भी है, ऑलरेडी जो 5,000 से कम है न्यूनतम वेतन डिक्लेयर, और उससे भी कम मिलने वाला है मनरेगा। मनरेगा में बहुत सारे राज्यों में न्यूनतम वेतन नहीं दिखते, राज्य का मिनिमम वेतन नहीं मिलता है, और वो मनरेगा भी, लेकिन वो गारंटी है, वो लोकल रूरल पॉपुलेशन का बार्गेनिंग पावर को कायम रख रहा है, इसीलिए वो खत्म किया है। वो सिर्फ बजट का बात नहीं है, दैट इज द ओनली लीगल गारंटी फॉर राइट टू वर्क, उसको रिकॉग्नाइज करने वाला एक ही कानून है, उसको खत्म किया, और उसमें जो वेजेस जो मिल रहे हैं उसको फर्दर जो है इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन का बार्गेनिंग पावर और कम करो, वेजेस को और नीचे करो, उसके लिए बनाया है ये भी। तो ये सारा एक साथ में लेके किसानों के ऊपर आता है। और जो मोर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द क्रूशियल एरियाज वी लैक for our struggle and the focused struggle. That is the right of the states. The attack on federalism. The labor laws attack the basis of federalism. जो लेबर लॉ के अंदर में राज्य सरकारों के अधिकार में हमला है, और न्यूनतम वेतन के ऊपर भी जो राज्य सरकार अपना वो लागू नहीं कर सकते हैं अपना, बहुत सारे जगह में वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट अपना पावर को सेंट्रलाइज करके अपने अधिकार अपने पास में रखा है। बहुत सारे प्रोविजन में द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग एंड डू एनीथिंग मोर देन व्हाट द लेबर कोड से, इंक्लूडिंग द वेजेस। वो द पावर इज वेस्टिंग विद द यूनियन गवर्नमेंट एंड इवन द केरला गवर्नमेंट, this is the only government declared that they will not implement these labor codes. And from it, there also the legal provision, they appointed a committee under the chairmanship of Justice Gopal Gowda to seek the legal aspects of how to overcome this. The central government that will be implemented, because any contradiction means that the central union law will have to be implemented. So to see the provisions, they have appointed a committee. But the point is that 2 points are here. This attack on the federal rights, on the resources, on every right. It is not only regarding the labor code, or your resolution say health, education, all the concurrent subjects. They have not removed it from the concurrent, but they have taken away all the power. Concurrent subject से हटाया नहीं है, लेकिन पावर तो सारा अपने पास ले लिया है, and all the schemes are central schemes now. Almost everything. You don't have even the leverage to have your own additional to that. That is the struggle in many of the state governments, like in Kerala, and they don't give. That if you are not writing the prime minister and in the ration card के अंदर में जो रेशन जो देते हैं उसका जो बोरी के अंदर में भी फोटो नहीं छापेगा तो रेशन का पैसा नहीं देंगे। ये तो कानून लेके आ रहे हैं, तो उसी का नाम में चलेगा, और उसका जो शेयर, and even for the disasters like the floods in Kerala or this what happened, the landslide, this is not being given to their due share. Even at the time of a disaster,
and it is not only about the opposition-led states. We must understand that it is not a question, not only a question about the opposition. केरला को नहीं दे रहे, बाकी सबको दे रहे क्या अपना शेयर? अभी हम तो ट्रेड यूनियन से बोलते हैं कि आंगनबाड़ी आशा का तो 6-6 महीना 8-8 महीने का तनख्वाह नहीं मिल रहा है। क्यों? वो तो सिर्फ केरला का बात नहीं है, वो तो अपना टैक्स चक्कर से दे रहे हैं, लेकिन यूपी में नहीं मिल रहा है, दिल्ली में नहीं मिल रहा है। वो तो डबल ट्रिपल इंजन भी चलता है बहुत सारे जगह में, अपना कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट पंचायत ये सारा मिलके, तो उसमें भी नहीं मिल रहा है कि क्योंकि उनको भी नहीं दे रहे हैं। तो it's a question that we have to raise, and our struggle will force the state governments to take a position. हमारे जो है ये नहीं कि चलो भाई ये बीजेपी वाला है तो इसको उसके पक्ष में हमने नहीं, वो तो स्टेट का राइट है। तो स्टेट का राइट के लिए हम अपना आंदोलन को हम तीखा करेंगे, तब जो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलते हैं ऐसा नहीं है। इवन जो है एनपीएस अपना जो है ओपीएस के लिए हमारी लड़ाई में जो आता है कि केंद्र का अभी भी ओपीएफआरडीए का जो पैसा है वो नहीं दिया वाला, तो हमारा उधर में हम वापस नहीं आना और तीव्र करना है। तब then make them, force them to take a position for their federal rights, कि वो सरकार को वॉइस करना है अपना हक के लिए। तुम लड़ो, तुम लिखो कि हमें चाहिए, तुम क्यों नहीं लिखते हैं? तुम्हारा तो डबल इंजन है, तुम्हारा सारा डबल इंजन मिलके बोलेगा तो क्यों नहीं होगा? तो ये अब, and not only that, this attack on our federal rights will be affecting the bargaining power of our working class movement, whether it is the state government employees movement, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है देने का, तो फिर लड़ाई क्या लड़ोगे, कितना लड़ोगे, हड़ताल भी करोगे तो मिल नहीं रहे। तो ये क्वेश्चन इज वेरी क्रूशियल फॉर आवर movement also about the attack on the federal rights, and that is also one of the crucial aspects for it. And then comrades, if that is the situation, then about our struggle. So that is when it is not only about our rights of the promotion or the DA or the page revision and all. Nothing is going to be remain. Do you see what happened in US? So that is the citadel of capitalism. What happened to the government employees of US? You remember, now almost 10 months or so, more than that. 6 months, all the government institutions were closed, apart from the essential. You remember that just recently after Trump came, because there is no money. पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए, तो अमेरिका में सारे सरकारी चीजें बंद हो गया था। वो पिछले जो हड़ताल ऐसे ही स्थिति हुआ था, तभी हमने सुना था कि अभी यूएस में जाएंगे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो बंद है, क्योंकि वो बोलने वाला कर्मचारी को घर में बिठाया हुआ। समझ गए? तो वो स्थिति यहाँ पे भी आएगी। Not so far. We never imagined when you entered into the service that your pension will be curtailed. हमारा पेंशन खत्म करेंगे, ये सोचा ही नहीं था कि हम अपने सर्विस में जब आए थे, तो हमारा तो यही था, शादी वादी भी इसीलिए भी हुआ है अच्छा करने से कि ये बोलते हैं ना कि ये है, इसका पेंशन भी है, इसका सेटल हो गया, सरकारी नौकरी अभी नहीं है, अभी तो सरकारी नौकरी में ही नहीं है, सारे आउटसोर्स है। तो that is not, and what we thought that once it is there that it will not be withdrawn no more. एक बार मिल गया तो वो विथड्रॉ नहीं करेंगे, ये भी सोच था, अब नहीं है। पेंशन ले लिया और हमारा जो है कोविड काल में काम करा दिया, तभी ये बंद करके रखा था, अभी भी नहीं दिया। वेज रिविजन का 5 साल भी नहीं है, अभी 10 साल भी बोलेंगे, 10 साल के बाद में क्या पता है कि इधर जयपात क्या बचेगा। कि ये स्थिति है तो ये डू और डाई, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डू और डाई। So that kind of a resistance we have to build. Comrades, that is the importance of 12th February general strike. People will ask, what will happen in Monday strike? एक दिन का हड़ताल में क्या होगा? और बहुत सारे क्रांतिकारी दूसरे संगठन भी है। अनिश्चितकालीन करो, एक दिन में नहीं करेगा, लेकिन अनिश्चितकालीन का बोलते हैं। बहुत सारे
दूसरे भी ट्रेड यूनियन है, हमें भी बोलते हैं. The point is that till now this is going to be the 24th general strike after these neoliberal policies are started. And when we first had this strike, we were a very few. जो CITU के इनिशिएटिव में हमारे राज्य कर्मचारी संघ के साथ में 91 नवंबर का जो स्ट्राइक हुआ है, उसी में हम अकेले थे, 2000 ही थे. Now there is an atmosphere we have created and people were not against neoliberal policy. INTUC जो बोलते थे हम तो ये पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, हम अपना तनख्वाह बढ़ाना है लेकिन ये पॉलिसी के खिलाफ नहीं है. Now what is the situation? Last more than 30 years of struggle have made such kind of a unity and an atmosphere of struggle that we have created, that and all unity of the working people. Not only the trade union unity is there, the unorganized, organized, government employees, public sector, everywhere, and even the gig workers, even those who are not even counted as workers, the lady patri wala, those so-called self-employed, everybody is coming together for this strike. And it's going to be a people's strike. And most importantly, comrade, this is the 9th strike after Modi came to power in 2014. This is the 9th general strike. Sectoral strikes are innumerable. So this were, and now in addition to that, now last 5 years, earlier also we were having that kind of struggle. मजदूर किसान एकता, that उसका जो एक नारा तो हम मजदूर किसान एकता का दे रहे हैं. And this is going to be the 5th general strike after these labor codes are passed. 2020 में जब कोविड था, 19 में पहला वाला कोड ऑन वेजेस पास किया और जो ये काला कृषि कानून के साथ में सितंबर 2020 they have passed these labor codes. उसी में उसके बाद तो वो सितंबर में पास किया तो हमारा नवंबर में हड़ताल हुआ. that strike that has created a situation. हमारा हड़ताल के कोड अब उसके साथ में, क्योंकि किसान संगठन का इस तरीके का आंदोलन नहीं था, कोई मंच नहीं था, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ में बात करके 26 नवंबर का कॉल दिया, हम साथ में करेंगे, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि कितने लोग आएंगे. और वो that was the historic start of that historic किसान struggle. So that unity created and उसका जो शुरुआत में you know that कि उसमें जो बॉर्डर में तो कोई किसान मजदूर का नारा भी नहीं था, जय जवान जय किसान का नारा था शुरुआत में. Now with consistent unconditional support, the working class movement of India has made this unity happen. कि हम जो unity बनाया है कि अनकंडीशनल सपोर्ट, कोई कॉल सर्कुलर देने की जरूरत भी नहीं पड़ा, तो वो किसान आंदोलन में सारे ट्रेड यूनियन के कूद पड़ा था. सपोर्टिव एक्शन में सब में आप लोगों ने कितना पैसा इकट्ठा करके दे दिया था वो आंदोलन के लिए. खुद जो है हमारे पंजाब हरियाणा के साथी बॉर्डर में कितने थे, यूपी के साथी कितने बॉर्डरों में रहते थे. तो दैट हैज क्रिएटेड दैट यूनिटी इन एक्शन. नेताओं को चाय पीना पी के सर्कुलर भेजने का नहीं है. यूनिटी इन एक्शन, यूनिटी फॉर स्ट्रगल. तो वो हुआ है, वो माहौल हुआ है. तो वो माहौल अलग अलग जगह में सेक्टोरल स्ट्रगल्स आल्सो. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज व्हाई कॉमरेड योर UPS came. From where the UPS came? During this period, if it was not for the betrayal of many of the employees unions, you could have fought back the OPS. अभी जो ये UPS कहाँ से आया? UPS जो आया वो आंदोलन के माहौल में आपने आंदोलन खड़ा किया था कि ये न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ का, और वो माहौल में बहुत सारे घोषणा हुआ, बहुत सारे जो दुविधा में हैं, और द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अंडरस्टूड. इसीलिए चुनाव के पहले कुछ गद्दारों को साथ में लेके वो घोषणा करवाया, तब जाके यूपीएस आया. आंदोलन के बिना वो भी नहीं आते, और ये आंदोलन को और तीव्र होता तो वो ओपीएस भी आते, जैसे किसान
का जो हुआ है। और अभी हमें वो करना है जो हम नहीं कर पाया। अभी जो है द challenge before the trade union movement, we have to admit that the trade union movement, we could not make this government withdraw the labor codes. We could not make this government reinstate the OPS. So now that is our due. हमारे लिए वो बाकी है। हमने पिछला, हमें सेल्फ क्रिटिकली ये मानना है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट को हमने ये लेबर कोड उनसे वापस नहीं करवा पाया, 5 साल रोके रखा। अभी वो अपने बेचैनी में उसको नोटिफाई कर दिया और हम 5वां हड़ताल वो 2020 के बाद में करने जा रहे हैं। तो हमारा वहां पे दूसरा हमारे कर्मचारी आंदोलन के सामने ये ड्यू है, क्या है कि हमारा ओपीएस भी हमें वापस नहीं करवाया, यूपीएस तक लेके आया, लेकिन वो ओपीएस लेके आने का वो चुनौती हमें स्वीकारना है। ये 12 फरवरी उसका शुरुआत हो रहा है। और कॉमरेड, वी हैव टू सी दैट कि ये जो यूनिटी और ये यूनिटी एक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ डू और डाई क्वेश्चन। तो ये अगर करना है तो ये भी देखना है। वी हैव टू सेल्फ क्रिटिकली सी दैट वेयर वी स्टैंड in the organized sector. We as CITU and as the joint platform of trade union movement, we say that we cannot attack, we could not in many places attack where the profit is coming in the private organized industries. वो प्राइवेट ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में अगर हड़ताल नहीं हुआ, जो आंगनबाड़ी आशा सड़क में आके कितना भी हड़ताल करे, वो पूंजी को कुछ ठेस नहीं पहुंचेगा। तो वो पहुंचाना हमारे लिए है। तो दैट इज वेयर दिस जनरल स्ट्राइक आल्सो, वो तो उसका प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम को खराब करते हैं, उसका चेन को भी खराब करते हैं। लेकिन वी हाउ टू हाउ दैट मेक दैट आल्सो हैपन इन द प्रोडक्शन सेंटर्स आल्सो, हाउ टू बी कमिंग टू ए हॉल्ट। तो वो हमारे को वो भी करना है। और जो हमारे कर्मचारी को भी देखना है, कितने सरकारी सर्विसेज बंद हुआ है, कितने हड़ताल में एक्चुअल में गया इस बार। पिछला तो आपने अपना विश्लेषण भी किया होगा, मेरा उम्मीद है you must have had your self critical assessment where you could have 100% strike, 70%, and where we didn't even issue a strike notice, we didn't go for a strike, and we did not even go for a demonstration. That I hope that you must have self critically assessed. वो तो हमने अपना आत्मालोचना किया होगा, लेकिन अभी के बाद उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है साथी। There is no scope for any wavering. No more your service won't be there to work service break. There won't be any more wage revision की एक दिन का हड़ताल का पैसा कटेगा नहीं। You have to tell the people and with the conviction, without any wavering in your minds, with that conviction, if you go, you are the leadership. I am fully confident that the entire state government employees and teachers will be on the strike. कि we are convinced, हम अगर पूरे विश्वास के साथ में, पूरा कन्विक्शन के साथ में, हमारा कोई इधर उधर का नहीं होगा, तो ये हड़ताल करके ही छोड़ेंगे। ये कन्विक्शन के साथ में, ये जो हमारे देश को बर्बाद करने की ये पॉलिसी को कुछ भी नहीं बचेगा, रही नहीं है, ये नहीं है। सारा तो साथियों ने बताया है, हिम्मत कैसा हुआ उसको ये करने को, हिम्मत हमारी कमजोरी से हुआ है उसको ये सारा निजीकरण करने का। ऐसा है तो हम लोगों को ये सिखाना है, ये बताना है कि एक दिन के तनख्वाह कटेगा, सीनियोरिटी होगा, क्योंकि तुम्हारे अगले पीढ़ी को बचाना है। यही हमारे जो नेताओं ने, जिनका नाम हमने लिख के रखा है, उन्होंने वो कुर्बानी दिया है, तब जाके हमें ये मिलता है, ये डीए मिलता है, ये प्रमोशन मिलता है। अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलता। तो हमारी बारी है अभी, हमें कोई हाथी चढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। Nobody is asking us to go to jail. It is one way range, and we are ready. And if we are united, that also many of you people are taking it back later. वो भी करते हैं आप लोग, आपस में भी लड़के लेते भी हैं 2 बार हड़ताल के बाद में हड़ताल वाला वेजेस। तो बहुत सारे स्टेट में ये भी करते हैं। तो ये करना है,
इसमें हम आपके बारे में कमजोरी नहीं छोड़ना है। And not only that, that we have that legacy comrade. एक और बात है, ये तो मेरा लालच है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि we look forward to you. Your struggle has helped to make many of the contract workers regularize. आपका अपना अभी का आंदोलन भी है, जो इसके दायरे में भी आप देखो, अपने इधर में आके हमारी जो बहुत सारे हम बोलते हैं कमजोर राज्य, जो मैंने यूनियन कमजोर, जहाँ वहां में भी आके बोला हमने इतने ठेके वाले लोगों को रेगुलराइज करवाया, बोला तो है ना। मेनी प्लेसेस वी having struggles also, and this is in one where there is there that has to be reflected in every action. वो आंदोलन जो है हर एक्शन में रिफ्लेक्ट होना है। छोटा स्ट्रगल बड़ा स्ट्रगल कभी जा सकते वाला आंदोलन ऐसा नहीं है, नो मोर। एवरी एक्शन हैज टू हैव 100%। किसी में 50 लोग, किसी में 500 लोग, किसी में 5,000, ऐसा आंदोलन आने वाले दिन में नहीं होना है। तो वो हमें करवाना है कि राज्य कर्मचारी संघ के ओर से देख रहे लोग, अपनी जो कॉमरेड ने शास्त्री जी ने ये बताया था कि पूरा देश देख रहे कि आप क्या लेंगे, क्या फैसला करेगा। आपका जो है यूपीएस लेके फोटो खींचवाने वाले लोग है ना, वो लोग भी देख रहे होंगे कि ये क्या करने वाले हैं। उनको मैसेज देना है, उनको ये मैसेज देना है कि हम जो है कि अभी डू और डाई में जाएंगे, और वही निर्णय होना है, उसमें कोई भी कमजोरी नहीं दिखाना। There should not be any weakness on that, and for that, with an iron-clad discipline, a militant organization, comrade. That is what I was telling. I was tempted to say. I got a report also about the membership. I am not a person to give you an advice or any opinion. I know. To have that legacy, मैं आपको कोई एडवाइस देने वाला ये नहीं है, लेकिन ये बोलने पे मुझे थोड़ा लालच हुआ कि मैं बोलूं कि ये करना है। This is not that what you reflect. आप तो 8-9 लाख का लोग नहीं हैं। I heard when I came to CITU that the State Government Employees Federation is a one organization larger than CITU. ये तो सुना था, लेकिन that has to be reflected in your membership also. आपका मेंबरशिप में भी वो रिफ्लेक्ट होना है कि that has to be formed. This is not anything formed. It is a shared concern. This is not any advice or any comment. Comrade, this is आपका जो कोई कमेंट करना है, एडवाइस करना नहीं है, हमारा सबका एक चिंता है। हम अगर आज फेल करेगा, हमारा संगठन है, that is the only weapon for us to fight, and they are curtailing the rights. You know what happened about the collective bargaining about the central government employees. You know the story of the NFP and all recognition, how it was withdrawn, so that they are into that. वो लोग तो अभी ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई वो अपना काम में पूरा है, वो 100% अपना काम कर रहे हैं, तो हमें सांगठनिक की कोई कमजोरी नहीं करना। And in that, comrade our women employees also, bringing them to the forefront, that will give you double strength. I am a witness of that. That is what is happening. That will give the confidence to your workers and their families also to fight. जो आपका महिला कर्मचारी सड़क पे उतरेंगे, तो उसका वो नंबर वाला बात ही नहीं है, वो आगे आएंगे तो वो पूरा आपका कर्मचारी आंदोलन को, आपका पूरा ट्रेड यूनियन आंदोलन को जो हिम्मत देते हैं, पूरे समाज के ऊपर उसका एक रिफ्लेक्शन आता है। I know through the experience of the scheme workers, it has given a new energy to the entire movement. कि जो महिलाएं कोई करवा चौथ के दिन में भी सड़क में बैठ के आंदोलन करते हैं, तो वो पूरा समाज के अंदर में एक बदलाव लाते हैं। तो इसीलिए, और वो एक आंदोलन का माहौल बनाते हैं जिसके अंदर जो लोग भी आके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो वो भी इसीलिए भी वो सामाजिक दौर में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये भी, और वो भी हम पूरा विश्वास है आप लोगों ने इतना ये आंदोलन किया है तो उसको आगे वाले दिनों में करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि ये जो पूरे देश को खत्म करने वाले जो ये लोग हैं उनको ये देने का है और इनको ये बताना भी है। और जो ये लोगों को बांटने का जाति के नाम पे मजहब के नाम पे बुलडोजर चलाने वाला एक दूसरे को नफरत फैलाने वाले के खिलाफ में वर्ग संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। वर्ग आंदोलन से ही एकता बनेगा, मुद्दों से ही एकता बनेगा। सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कौन सा जाति लेके क्या बताएगा, कौन सा मजहब लेके क्या लड़ोगे। तो ये है कि इसको लिए एकता बनाने के लिए एंड यू आर द पीपल हु आर गिविंग दैट सर्विसेज टू द पीपल। जनता के लिए वो सर्विस देने वाले हैं आप, तो आप लोगों में वो भी पावर है कि आपका बात लोग सुनते हैं। हमारे अनुभव यही है कि रिटायर्ड कर्मचारी ही हमारा बहुत सारे जगह में ट्रेड यूनियन और किसान संगठन भी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए रिटायर होने का इंतजार मत करना, अभी से कर सकते हैं। तो ये and it's a class responsibility also, comrades. You have to help and bring the people into the struggles and the unionization. किसानों को, मजदूरों को, दूसरे असंगठित मजदूरों को भी संगठन में हमारे अनुभव यही है कि जो मैं सेक्टर में डील करता है स्कीम वर्कर्स का, आप लोगों की मदद से ही बहुत सारे जगह में बना है और चल भी रहा है, आंदोलन भी चल रहा है एंड दैट हैज टू बी रिप्लिकेटेड मेनी वेज। तो वो भी एक हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, क्लास यूनिटी बनाने का अपना ये है। और ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन मूवमेंट कैन डू मेनी थिंग्स, दे हैव टू लीड द मूवमेंट। तो वो लीडरशिप रोल आप करेंगे, ये उम्मीद के साथ में आपको क्रांतिकारी अभिनंदन भी देती हूँ और अपना बात खत्म करती हूँ और आपको एक बार आपका हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। फोन नहीं कह